Okay, so you can see the Zoom interface, Zoom window now. So, this is the general Zoom window. So it is, you can start a new meeting from here once you download the Zoom app. So another problem with Google Meet is that it is entirely on the web. There is not even an app for desktop, which is for Google Meet. There are apps for other like Microsoft Team and Zoom, but Zoom has a desktop app. So I'm showing you the desktop app. You can also have a PC app. Otherwise, you can also additionally attend it through, web link. In Google Meet, you only have the web link and mobile app. But as a teacher, we will, need sometimes we need a desktop app in which we can do many things, but that is not there in Google Meet. So I will be at every point telling you the comparative picture. So this is the window. You can see, you can schedule a meeting, you can share screen, you can join a meeting, you can start a new meeting. This is the simple window, and there are no meetings for today lined up, nothing for schedule for today. And if you click on this button, here you can see a lot of settings. So I think the settings window is visible. Settings window is visible. I don't think it would be visible. So let me share the screen with the settings window. Um, so this is Hassel and Hassel in Google Meet. So are you able to see the settings window? Anybody please unmute and say, are you able to see Yes, the settings? Yes, yes, we are yes. able to see. So you are able to see the icons like general, video, audio? Yes. Okay, okay. Thank you very much, ma'am. Thank you. There are several settings here in this icon, settings icon, through which you can, complete control, with that a teacher wants, and that we can have in a meeting. You can get on platforms like Zoom only. In fact, there is no better platform for control. As far as control, there are other issues that we will talk about, but regarding control, it is the best there that it is on Zoom. So start Zoom when I start, when closed, automatically copy. You can in Google Meet you have to copy the link. In Zoom you can just copy the invite link automatically. Ask me to confirm. So when I leave a meeting, so if you have mistakenly you click on leave meeting, so it will ask you to confirm. Show, I have enabled to show my connected time, so how long the meeting is going on. Then again stop my video and audio when battery is low. Then again in video, we can have different features. Audio, you can again test the mic, you can see microphone, speaker. Then share screen settings. So by default settings are there. Chat settings are there. These are very difficult to control and access. So how long will I get the chat, who will chat? So I will show you more of these features while on the, I want to show you in a meeting, so I will take you there. Recording, so you can record in the system, or you can record on cloud. So in cloud, in Google Meet, your recordings went to your Google Drive. But in Zoom, again, better feature, because if it gets to Google Drive, then again Google Drive has limited space. Then again, you have to download it from Google Drive, so it consumes a lot of data. But in Zoom, you can record directly on your computer. So you can choose the location. You can see we can choose the location. Then profile and subscription and advanced features, then statistics of uses, some keyboard shortcuts for doing things,
and also accessibility, icons, normal, medium, large. So, all this we will see when I take you to a meeting. So let me start a meeting. So I have started a new meeting, but let me share that screen with you, meeting screen with you. Actually, we are doing it like this because so as to show you the entire meeting screen. Now it would be visible. So now the meeting screen is visible. So this meeting screen I wanted to show. So because you as a teacher will have complete control only when you see this meeting screen and understand the features. That is why we have chosen Google Meet to show you all the controls. So you can see there are several options. Now let me first take you to what are the security settings, because there has been a lot of issues regarding security and privacy issues. But let me tell you, please do not believe in rumors and other things. There has been no major security glitch with Zoom app in the past 3 months at least, so after May. And as Anupam has sent you in program schedule also, with the latest version of Zoom, why there has been no security glitches and what were the glitches that were taking place earlier. So let's understand this that in few minutes, and then I will tell you the teaching interface and teaching controls that you can have. So first of all, for every meeting, so if you click here on participants, if you click here on participants and click here on invite, if you click on participants and then click on invite, then you can see copy invitation. So I have copied invitation, and you can see that for each invite, let me show you by writing in the chat. ID. Hello, yes sir. Dear participants, for the last 2 days, Anupam sir was sharing you a direct joint link because you are trusted colleagues. But as you can see here, for all other meetings, you can get a unique meeting ID and unique meeting passcode. So now there is no point of anybody else hacking in or joining in to your meet. For every meeting, there is you can see it is 11-digit unique meeting ID, and it is 6-digit unique passcode or password. So anybody cannot guess what is, even if they know that your meeting is going on, they cannot guess that what is the meeting about or when or what is the where they cannot barge in, because the meeting ID and passcode is unique every time. This is the first major security feature that Zoom has updated. Secondly, dear participants, very recently last month, Zoom has enabled end-to-end encryption. So just like your Google Meet, on the equivalence with Google Meet. So there is no security glitches in Google Meet because all the meetings and calls are end-to-end encrypted. That is, from both end, the door is sealed. Just like you are in a meeting and there are two doors and both the doors are bolt sealed. So Zoom has also enabled it for premium users. That is why those teachers who were using it for free were facing glitches and security issues in April and March. But from May there has been no such issue, except maybe I don't know, maybe one or two instances with not updated versions, but with updated versions, even now on free accounts, not the licensed version. Even on the free versions, there are calls are end-to-end encrypted. So there will be no breach of security or privacy. Also, as you saw, there is unique meeting ID and password, which is randomly generated. हर बार एक नया मीटिंग आईडी पासवर्ड जनरेट होता है जो हर मीटिंग के लिए अलग है, और एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, तो कोई ग्लिच नहीं होगा. तीसरी चीज आप जो कर सकते हैं, इनेबल वेटिंग रूम. इनेबल यहाँ पे सिक्योरिटी पे क्लिक करिए, इनेबल वेटिंग रूम कर दीजिए. तो वेटिंग रूम इनेबल करने से
कोई भी अगर मीटिंग आईडी पासवर्ड भी चली गई, मीटिंग आईडी पासवर्ड हर बार मीटिंग के लिए अलग अलग जनरेटेड है, पर फिर भी अगर कोई उसमें चला गया, कोई आ गया उसमें, तो भी पहले वो वेटिंग रूम में बैठेगा, डायरेक्टली आपकी मीटिंग में ज्वाइन नहीं कर सकता है। वो वेटिंग रूम में आएगा। वेटिंग रूम यहाँ पे अर्नब, पार्टिस ये मैं आपको रोक रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली कुछ लोग हैं हमारे कॉलेज में जिनके पास इंस्टीट्यूशनल आईडी नहीं है, और बिकॉज ऑफ दैट वो अभी ये मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो इज दिस एन अनदर वे जिसकी वजह से वो ज्वाइन कर पाए ये मीटिंग? सर अब मैंने उनके मेल आईडीज पे एक इनवाइट भेजा है सर। आप उनको उनका हाँ मेल आईडी खोलने भेजिए, क्योंकि सर आपके हाँ, ही कॉलेज के काफी सारे नॉन इंस्टीट्यूशनल मेल वाले लोग भी ज्वाइन कर चुके हैं, तो बस उनको जो ठीक है, एफटीपी वाली मेल आईडी से वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं बोलता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। सिक्योरिटी फीचर में आप लोग डियर टीचर्स देख पा रहे हैं कि वेटिंग रूम है, तो डायरेक्टली आपके जैसे प्रिंसिपल का चैम्बर होता है, जैसे सीईओ का, बॉस का, प्राइम मिनिस्टर का, सीएम का चैम्बर होता है, डायरेक्टली कोई एंटर नहीं कर सकता, वैसे ही वेटिंग रूम है। अब डायरेक्ट आईडी पासवर्ड भी होगा किसी के पास, तो भी आपकी मीटिंग में डायरेक्टली एंटर नहीं कर पाएगा। पहले उसे आपकी मीटिंग में वेटिंग रूम में आएगा, आपको उसका नाम डिस्प्ले होगा, आप उसे एडमिट करेंगे तभी वो आपकी मीटिंग में एंटर करेगा, नहीं तो वो डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता है। तो आप उसका नाम देख के कंफर्म कर लेंगे कौन पर्सन है, तभी आप उसे एंटर करने देंगे। फिर अगर कोई पार्टिसिपेंट ऐड हो जाता है, तो आप उसे रिमूव कर सकते हैं, उसे म्यूट कर सकते हैं। जैसे मैं 1 मिनट के लिए अगेन अपनी किसी दूसरी आईडी से ज्वाइन इन करके आपको शो कर देता हूँ इसमें कैसे दिखेगा आपको, और वेटिंग रूम वगैरह भी कैसे वर्क करता है। सो इस मीटिंग का आपने देखा होगा, मैंने इनविटेशन वगैरह कॉपी कर लिया है, और अब मैं उसे 1 मिनट आप दीजिए मुझे, ताकि मैं उसे दूसरी आईडी से ज्वाइन इन कर लूँ। सो मुझसे मीटिंग पासवर्ड पूछा जा रहा है, तो मैं मीटिंग पासवर्ड डाल रहा हूँ 220165, जो आप यहाँ देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अब वेटिंग रूम में कोई पर्सन आया है। जो कि मैंने वेटिंग रूम इनेबल कर दिया, तो उसके पास मेरी आईडी पासवर्ड होने के बाद भी, पहले तो आईडी है सिर्फ, तो पासवर्ड मांगेगा, फिर पासवर्ड के बाद भी वो एडमिट नहीं हो रहा है। उसे आप एडमिट करने के लिए आप उसे पहले वो वेटिंग रूम में आएगा, और यहाँ आप देख सकते हैं 1 पर्सन इज वेटिंग का मैसेज आपको दिख रहा है आपकी मीटिंग में। और यहाँ पे आप इसे मैसेज कर सकते हैं कि आप वेटिंग रूम में बैठे हुए लोगों को भी मैसेज कर सकते हैं, ज्वाइन विथ योर रियल नेम, ऐसा करके आप उन्हें बोल सकते हैं, या आप अपने रोल नंबर की बात भी उन्हें बोल सकते हैं। फिर मैं उसे एडमिट कर लेता हूं। तो एडमिट करने के बाद भी, अगर इतने के बाद भी कोई ब्रीच हो जाती है, आप देख सकते हैं दूसरा पर्सन ऐड हो गया है, अगर इतने के बाद भी यू नो ब्रीच हो जाती है, तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप यहाँ पे मोड में जाके आप देख सकते हैं, वापस से इन्हें वेटिंग रूम में डाल सकते हैं, इन्हें रिमूव कर सकते हैं। आप दोनों चीजें अभी भी कर सकते हैं, वापस से इसे वेटिंग रूम में डाल दीजिए और बोलिए कि अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करो, या फिर आप इसे रिमूव कर सकते हैं मीटिंग से। और आप ये भी सेटिंग इनेबल कर सकते हैं, जो सेटिंग्स में दिखा रहा था, कि एक बार कोई रिमूव हो गया तो वो दोबारा ज्वाइन ना कर सके सेम मीटिंग को। फिर फाइनली आप एक लॉक मीटिंग का भी ऑप्शन है आपके पास। लॉक मीटिंग का मतलब है कि आपने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद कर दिया, इसका मतलब अब कोई
भी इस मीटिंग में एंटर नहीं कर सकता है। तो जैसे ही आप मीटिंग को लॉक कर देते हैं, तो कोई भी मीटिंग में एंटर नहीं कर सकता है। आप उसे ना ही एग्जिट कर सकता है कोई, बट कोई नया पर्सन एंटर नहीं कर सकता। तो आपको पता है आप 5 मिनट 10 मिनट के बाद मीटिंग लॉक कर सकते हैं। पर जनरली मैं ये एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि बच्चों का कनेक्शन अनस्टेबल होता है। तो बच्चे कई बार डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो दोबारा आ सकें इसलिए आप मीटिंग को लॉक ना करें। पर अगर आप अपने कलीग्स के साथ, इंपॉर्टेंट लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, 4-5 लोगों के साथ, तो आप मीटिंग सबके आने के बाद मीटिंग को लॉक कर सकते हैं। फिर अब आप पार्टिसिपेंट कंट्रोल के फीचर्स देखिए। अब जैसे गूगल मीट में सबसे बड़ी दिक्कत जो कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, वो ये है कि कोई भी स्क्रीन शेयर स्टार्ट कर सकता है। आप मना करते रह जाएंगे, पर कोई आपकी बात नहीं सुनता, और आप वो प्रेजेंट नाउ करके वो स्क्रीन शेयर ऑन कर देते हैं। फिर उन्हें पता भी नहीं चलता उसे कैसे डिसेबल करना है। पर जूम में फायदा ये है कि आप यहाँ पे इसे अनटिक कर सकते हैं। तो जैसे अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू शेयर स्क्रीन यहाँ पे टिक्ड है, मैं इसे अनटिक कर देता हूं, तो अब कोई भी पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर नहीं कर पाएगा। तो अनलेस मैं प्रेजेंटेशन ले रहा हूं या कुछ और, नॉर्मल क्लासेस में कोई भी बच्चा स्क्रीन शेयर करके कुछ भी गलत सलत दिखाना या डिस्प्ले करना या आपको बॉदर करना, डिस्टर्ब करना नहीं कर पाएगा। फिर अगेन ये गूगल मीट में पॉसिबल नहीं है सिक्योरिटी फीचर, तो कोई भी आपका शो कर सकता है। फिर चैट, अगेन पार्टिसिपेंट्स आप आपस में उनको चैट करने अलाउ करना चाहते हैं या नहीं, आप इसे भी डिसेबल कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चैट का आइकन है। अच्छा, यहाँ पे चैट का आइकन है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैं सेटिंग्स में सेलेक्ट कर सकता हूँ कि पार्टिसिपेंट्स कैन चैट विथ होस्ट ओनली। अभी गूगल मीट पे एक और प्रॉब्लम क्या है कि जो भी एक होस्ट के साथ चैट करने का ऑप्शन ही नहीं है। तो हम लोग एज अ टीचर क्या चाहते हैं कि बच्चे टीचर से बात करें बस। पर प्रॉब्लम ये होती है कि गूगल मीट पे कोई भी बच्चा कुछ भी डालेगा, तो कुछ भी बच्चे को भी दिक्कत है, क्योंकि बच्चे के लिए भी कुछ पर्सनल नहीं रह गया कोई नहीं, वो हर चीज पब्लिक है गूगल मीट पे। बट जूम में आप यहीं पे चूज कर सकते हैं कि बच्चा सिर्फ होस्ट से बात करे। तो जब वो होस्ट से चैट करेगा, जैसा अभी हम लोग कर भी रहे थे कल के और आज के सेशन में, तो वो मैसेज सिर्फ टीचर को दिखाई देगा, किसी और को नहीं, अनलेस कि आप एवरीवन पब्लिकली न करें। तो बच्चे के सारे डाउट्स क्वेरीज आप तक ही पहुंचेंगे बस। फिर आप यहाँ पे रीनेम करना अलाउ कर सकते हैं, या इसको आप अनटिक कर सकते हैं। तो जैसे किसी ने ज्वाइन तो कर लिया, उसके बाद वो अपना नेम चेंज करके ओसामा बिन लादेन कर दे, डोनाल्ड ट्रंप कर दे, और कुछ भी और कर दे, किसी फिल्म एक्ट्रेस एक्टर का नाम डाल दे। तो ये सारे बदमाशी बच्चे करते हैं। ये सारा कंट्रोल आपके पास सिर्फ और सिर्फ जूम में है। आप यहाँ पे रीनेमिंग डिसेबल कर सकते हैं। तो पार्टिसिपेंट्स अपने आप को रीनेम कर ही नहीं पाएंगे। आप उनको एंट्री देंगे, वेटिंग रूम में रखेंगे, एंट्री तभी देंगे जब उनका नेम आप जानते हैं, और उसके बाद आप ये रीनेम को अनटिक कर देंगे, तो वो कभी भी अपने आप का अपना नेम चेंज ही नहीं कर पाएंगे। फिर जो एक और बड़ा फीचर है जूम का, जो अगेन गूगल मीट में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, कोई भी अपना माइक ऑफ ऑन करके बोलना शुरू कर देता है। आप लोग बहुत ही प्रॉपरली ऑडियंस की तरह वर्क कर रहे हैं, पर मैंने एक दो और सेशंस लिए हैं गूगल मीट पे, एंड इट इज रियली क्योंकि प्रॉब्लमेटिक है बच्चों के साथ खासकर, क्योंकि बच्चे नहीं समझते, उनको कुछ बच्चों को पता भी नहीं होता, वो गलती से भी अनम्यूट कर देते हैं, और पूरा उनके मम्मी पापा के झगड़े से लेके, कुत्ते के भौंकने से लेके, बैकग्राउंड का सारा नॉइज आपको कॉन्टिन्यूअसली सुनाई देता रहेगा, और क्लास लेना गूगल मीट पे एक डिस्टरबेंस हो जाता है, न्यूसेंस हो जाता है। क्योंकि वहां पे आपको सिर्फ एक है कि आप जाके एक उस बंदे को म्यूट करेंगे, और जब आप म्यूट करेंगे तब तक कोई दूसरा बंदा अनम्यूट हो जाएगा, और फिर पहला वाला बंदा भी अनम्यूट हो जाएगा। तो आप उसको कहीं भी रोक नहीं सकते। पर जूम में आप एक क्लिक से, जैसे आपने देखा होगा आज और कल जूम के सेशन पे
किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि हमने सबको पार्टिसिपेंट अनम्यूट कर सके खुद को, ये हमने अनटिक कर दिया था। तो कोई भी पार्टिसिपेंट अपने को अनम्यूट करके कोई भी बैकग्राउंड नॉइज या डिस्टरबेंस मीटिंग में, क्लास में नहीं आएगी। फिर यहाँ पे रिएक्शंस में आप थम्स अप, क्लैप कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स जो हैं, बच्चे जो हैं, बच्चों के उसमें आपको हैंड रेजिंग का भी ऑप्शन आएगा, हैंड रेजिंग का ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ पे और भी आइकन्स हैं, टी ब्रेक, नीड अ ब्रेक, तो चाय की कप है, अगेन थम्स अप, लाइक, डिसलाइक, यस नो का भी ऑप्शन है जूम में। ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। और जूम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गूगल मीट में आप सिर्फ इंस्टीट्यूशनल आईडी से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, पर जूम में आपको कोई जरूरत नहीं है, आप किसी भी आईडी से, इनफैक्ट फ्री अकाउंट से भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगेन ये आपके पास दो ऑप्शन है, रिकॉर्ड ऑन दिस कंप्यूटर एंड रिकॉर्ड टू द क्लाउड। और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जूम के जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स रहे हैं वो काफी अच्छे रहे हैं, जिससे कि जो कि प्रेजेंटेशन रेडी रहा है, जिसको आप शेयर भी कर सकते हैं और कहीं भी यूट्यूब वगैरह पे भी डाल सकते हैं। तो आपको उसके लिए कोई एडिशनल एफर्ट नहीं करना पड़ेगा वीडियो क्रिएशन का, जूम की वीडियो रिकॉर्डिंग सफिशिएंट होती है। फिर आप, ये आपके लिए है, ये दो चीजें आपके लिए होती हैं एज अ टीचर। आप खुद को म्यूट करना चाहें तो जैसे मैंने अभी आपको अपने आप को म्यूट कर लिया था, अपना वीडियो ऑन ऑफ कर सकते हैं आप यहाँ से। यहाँ पे स्पीकर व्यू है, अदरवाइज आप यहाँ पे गैलरी व्यू कर सकते हैं। तो जिसके लिए आपको गूगल मीट में एक्सटेंशन ऐड करना पड़ रहा था, वो अगेन फीचर जूम में डायरेक्टली अवेलेबल है। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब आपको छोटे छोटे आइकन्स में दिख जाएंगे एक ही स्क्रीन पे। तो आप ऐसा बीच बीच में कर सकते हैं क्लास में, देखने के लिए कि बच्चे अलर्ट हैं, सो तो नहीं रहे, भाग तो नहीं गए, वो आपकी क्लास को अटेंटिवली सुन रहे हैं, या आप इंश्योर कर सकते हैं, क्योंकि गैलरी व्यू में आप एक ही साथ कई सारे बच्चों को अपने स्क्रीन पे देख पाएंगे। फिर यहाँ पे आप देख पाते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ मैसेज आ रहा है, क्योंकि मेरा अपडेटेड वर्जन है जूम का। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि आप इंक्रिप्टेड हैं, तो कभी भी मुझे 3-4 महीने में कोई दिक्कत नहीं आई है, कोई सिक्योरिटी ग्लिच या ब्रीच नहीं हुआ है। और ये हमारा अगेन मीटिंग का लिंक है। फिर आप यहाँ पे अगेन वापस क्लिक करेंगे तो आप अगेन यहाँ पे, जैसे सर ने बताया था, हम लोग 5.0.3 वर्जन यूज कर रहे हैं और सारी चीजें यहाँ पे हैं। फिर एक जो स्क्रीन शेयर की बात मैं आपके साथ करता हूँ, एक जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अगेन स्क्रीन शेयर, बाकी सारी चीजें तो हैं, पर यहाँ पे जूम में आपके पास व्हाइट बोर्ड है। आप देख पा रहे होंगे व्हाइट बोर्ड, क्या देख पा रहे हैं टीचर्स? कोई एक दो टीचर्स अनम्यूट करके प्लीज कंफर्म कर लीजिए। नहीं सर, व्हाइट नहीं है, हमें ब्लैक आ रहा है। हाँ हाँ, ओके ओके मैम, क्योंकि व्हाइट बोर्ड के लिए मुझे दोबारा से स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। ओके, सो आप एक सेकंड दें मुझे, मैं व्हाइट बोर्ड की यूटिलिटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, व्हाइट बोर्ड ही हमारा मतलब फंडामेंटल रहता है टीचर्स का, ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड। सो अब आप जूम का व्हाइट बोर्ड देख पा रहे हैं? एक दो टीचर प्लीज। yes Arnav. ओके ओके, थैंक यू अंजलि मैम, थैंक यू सो मच। देखिए अब इस व्हाइट बोर्ड में आप देखिए, इस व्हाइट बोर्ड में आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। आप कुछ भी यहाँ पे, जैसे कोई भी आप ड्राइंग कर सकते हैं, स्पॉटलाइट से हाईलाइट कर सकते हैं चीजों को, इरेजर वगैरह है, क्लियर एक बार में ही सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे हम बोर्ड पे डस्टिंग करते हैं, थोड़ा थोड़ा पार्ट मिटाते हैं, क्लियर ऑल वर्क आप कर सकते मतलब हैं। आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है। अच्छा, औरों को विजिबल हो रही है या? आई थिंक मैंने शेयर कर दिया। Yes, हो रही है सर, हो यस रही है। Arnav, it is visible. अच्छा, हमारे अनुपम सर को ही आज दिक्कत हो रही है, पर सर आप एक बार देखिए अपने एंड पे सर, क्या इशू हो सकता है। ओके फाइन, लेट मी चेक, कंटिन्यू, यू कंटिन्यू। ओके ओके सर। सो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट
को यूज करके टेक्स्ट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑप्शन से कई सारी चीजें अगर आपने बनाई, या जैसे आपने कोई शेप यहाँ पे बनाया है, या फिर कोई और चीजें आपने की हैं, तो उसमें आप उसे सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। टेक्स्ट चूज करने पे आपके पास टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है, जिसमें आप पूरा का पूरा कंटेंट टाइप कर सकते हैं। तो जैसे जो भी हम लोग व्हाइट बोर्ड पे नॉर्मली लिखते हैं, वो चीजें हम टेक्स्ट में लिख सकते हैं। सो ये सारी चीजें आपको जूम में ही अवेलेबल है, और आपको गूगल मीट में अवेलेबल नहीं है ये। तो मैं वापस से एक बार मैं वापस से मीटिंग में आ जाता हूँ। आई एम नॉट श्योर कि अभी हाँ, प्रेजेंटेशन में मैं अभी एक बार आपको अब आप क्रोम का मेरा ब्राउजर देख पा रहे होंगे। तो अटेंडेंस कैसे लेनी है गूगल जूम पे, तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि कितना अच्छा अटेंडेंस आ जाता है, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये आप कैसे ला सकते हैं। तो इसके लिए मैंने अटेंडेंस डाउनलोड की हुई है, तो वो मैं आपको पहले शो कर देता हूँ, फिर मैं आपको वो बताता हूँ कि आप कैसे अटेंडेंस ला सकते हैं। सो आप ये एक्सेल शीट देख पा रहे होंगे। प्लीज जब भी मैं कोई नई चीज शेयर करूं तो एक दो लोग प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा, क्योंकि ये इतने सारे विंडोज हैं कि मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि आपको दिख रहा है या नहीं। Yes, Arnav, we are able to see. ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सो ये मैंने जूम के अकाउंट से अपना पूरा डाउनलोड किया था जुलाई का। जुलाई में जितने भी मेरे सेशंस या वर्कशॉप्स या कोर्सेज थे, क्लासेस तो नहीं थे, तो उनका सारा डिटेल अब आप इसमें देखिए कि एक एक पार्टिसिपेंट का नाम, कितने बजे वो ज्वाइन किया, कितने बजे वो लीव किया, कितने देर तक वो मीटिंग में रहा। आई थिंक एक दो लोग अनम्यूट हो गए हैं गूगल मीट पे, सो काइंडली अपने आप को म्यूट कर लीजिए ताकि थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्टरबेंस ना आए। आप देख पा रहे हैं कि ज्वाइनिंग टाइम, लीविंग टाइम, ड्यूरेशन, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, गूगल मीट पे ज्वाइन करेंगे और 5 मिनट में भाग जाएंगे। पर जूम में यहाँ आप पूरा एग्जैक्ट ड्यूरेशन देख सकते हैं, किस दिन कौन सा बच्चा, और ये सारा 6 जुलाई का ये पहले मंथ आता है वेस्टर्न फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। पहले 2 डिजिट्स मंथ होते हैं, नेक्स्ट 2 डिजिट्स आपके डे होते हैं। तो 07 मतलब जुलाई, और 06 मतलब 6th डेट। 6 जुलाई को इतने सारे लोग अटेंड किए और इसे टाइम पे आए, इतने टाइम के लिए रुके। फिर 7 जुलाई को ये लोग थे, फिर 8 जुलाई को, 9 जुलाई को, 10, 11, 16। आप देख सकते हैं एक सिंगल एक्सेल शीट में। और ये काम आपका इतना आसान हो जाएगा, गूगल मीट में आपको हर दिन का, हर मीटिंग का एक एक करके डाउनलोड करना पड़ेगा। पर इसमें तो आप सिंपली एक बच्चे का नाम कंट्रोल करके, फाइंड करके भी सर्च कर लें, तो आपको पता चल जाएगा वो कितने क्लासेस में प्रेजेंट रहा है, और आप एक ही स्क्रॉल में पूरे मंथ का देख सकते हैं बच्चों का। और यहाँ पे आप इनका सारा चीजें आपको, और आपको टीचिंग रिकॉर्ड के लिए भी कि आपने क्लासेस वगैरह ली हैं, तो आप देख सकते हैं आपकी मीटिंग आईडी, यूनिक मीटिंग आईडी, क्लास ड्यूरेशन, सारी चीजें यहाँ पे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ड्यूरेशन ऑफ द मीटिंग भी है, कितने देर आपका मिनट मीटिंग चला। तो आपकी क्लास, कई लोग पूछेंगे कि क्लास 5 मिनट 10 मिनट में ही खत्म कर दी, तो ये पूरा आपके पास रिकॉर्ड है कि मेरी क्लास 2 घंटे 3 घंटे या जितने देर भी चली। ये सारे फीचर्स आपके पास जूम में अवेलेबल हैं। पर जूम में कई लोग जूम में इंटरेस्टेड हैं और यूज भी कर रहे होंगे, तो ये जूम में आता कैसे है वो मैं अब आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना है मैं आपको शो करता हूँ। आप सबसे पहले, आपको मैं सिंपल से ही दिखाता हूँ। ये आपका विंडो है, जूम का ऐप है आपका। आप यहाँ पे अकाउंट पे अगर क्लिक करें, मैंने लाइसेंस वर्जन लिया हुआ है, इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा।
तो यहाँ पे आप अकाउंट पे क्लिक करें। अकाउंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इसके अकाउंट सेटिंग में आ जाएंगे, जो मैं अब आपको शो करता हूँ जूम का आपका अकाउंट सेटिंग। ये देखिए, ये आपका जूम का अकाउंट सेटिंग है। यहाँ पे भी आप माय अकाउंट कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपका पर्सनल विंडो है। इसमें मैंने पर्सनल मीटिंग आईडी डिसेबल कर दी है, ताकि पार्टिसिपेंट्स के सिक्योरिटी के लिए हर बार मुझे नई आईडी और पासवर्ड मिले। अब यहाँ पे सारी चीजें हैं। रिपोर्टिंग कहाँ आती है? वो एडमिन में आप जाएंगे, एडमिन में आप देखेंगे अकाउंट मैनेजमेंट। अकाउंट मैनेजमेंट में रिपोर्ट्स आता है। अकाउंट मैनेजमेंट में रिपोर्ट्स आता है, और इस अकाउंट मैनेजमेंट में एक्टिव होस्ट, व्यू मीटिंग, पार्टिसिपेंट एंड मीटिंग मिनट्स, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप ड्यूरेशन डाल दीजिए। एक बार में 1 मंथ का ही रिपोर्ट जनरेट होता है, जो कि हमारे लिए मोर देन कन्वीनियंट है। तो आप यहाँ पे जुलाई का सेटिंग कर दें, 1 जुलाई टू ऑटोमेटिकली 31 जुलाई हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसे एक्सपोर्ट कर लीजिए एज CSV फाइल, या जनरेट डिटेल रिपोर्ट भी आप कर सकते हैं, जैसा डिटेल रिपोर्ट में आपको शो कर रहा था वो भी एक्सेल फाइल में आ जाएगा। तो डियर पार्टिसिपेंट्स, जूम में आपके पास हर तरह का सिक्योरिटी एंड कंट्रोल फीचर है। यहाँ पे आप सेटिंग्स में देख पाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ zoom.us, इसका वेबसाइट है zoom.us, इसमें जाना है। और अभी कुछ चाइना के साथ भी इंडिया का हम लोग जानते हैं ट्रबल चल रहा है। मैं अगेन क्लैरिफाई करता हूँ कि जूम एक अमेरिकन कंपनी है। जूम को चाइना से कोई लेना देना नहीं है। तो चाइना के एप्स और चाइना की चीजें ब्लॉक हो रही हैं, बैन हो रही हैं, वो गवर्नमेंट भी कर रही है, हम सपोर्ट करते हैं, पर जूम का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह के रूमर्स में मत फंसिए और ना ही बिलीव करिए। यहाँ पे आप मीटिंग से रिलेटेड सारी सेटिंग्स देख सकते हैं। पार्टिसिपेंट वीडियो ऑन कर सकेंगे या नहीं, होस्ट वीडियो ऑन कर सकेगा या नहीं, सारी की सारी सेटिंग्स यहाँ पे हैं। कुछ भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं, पूरा का पूरा आपका कस्टमाइज कंट्रोल है जूम। और लास्ट एक दो बातें जिसके बाद हम आज की मीटिंग कंक्लूड कर सकते हैं। और 5 मिनट क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। तो जूम में आप एक दो और चीजें देखेंगे कि जैसे ही आप शेयर स्क्रीन करेंगे, जैसे मैंने PPT शेयर कर दी यहाँ पे जूम के थ्रू, पर वो आपको अभी दिख नहीं रहा होगा क्योंकि वो मैंने जूम का शेयर स्क्रीन किया है। सो अगेन 1 सेकेंड आप मुझे दीजिए, क्योंकि हम लोग मल्टीपल वो यूज कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। आपको ये सारी दिक्कतें नहीं आएंगी क्योंकि आप सिर्फ एक जूम का भी विंडो खोलिएगा जिसे आप यूज करेंगे। तो जैसे ये PPT है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, एनोटेट कर सकता हूँ। तो आप ये देख रहे होंगे स्पॉटलाइट है, स्पॉटलाइट है, मैं यहाँ पे स्पॉटलाइट ला सकता हूँ। यहाँ पे सारा जो मैंने आपको पहले बोला था टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स देखिए, टेक्स्ट बॉक्स ये जो व्हाइट बोर्ड पे भी आता है, यहाँ पे भी मैं आप शो कर रहा हूँ। एज अ टीचर हम लोग यहाँ पे सारी चीजें टाइप कर सकते हैं, जूम क्लासेस एंड सो ऑन, ये सारी चीजें हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जैसा आप बोर्ड पे लिखते हैं, या आप कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। और एक दो चीजें बस और लास्ट, अगर आपको पार्टिसिपेंट्स ट्रबल कर रहे हैं कि पार्टिसिपेंट्स कुछ आपके स्क्रीन पे या प्रोजेक्टेड स्क्रीन पे कुछ शो कर रहे हैं, तो नीचे मोड का ऑप्शन है। मोड में आप शायद देख भी पा रहे होंगे, डिसेबल पार्टिसिपेंट एनोटेशंस, आप अगर कर देंगे तो कोई भी पार्टिसिपेंट आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें कुछ भी वो ड्राइंग या कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं कर पाएगा। तो ये किसी भी तरह का आप कुछ भी मतलब मैं आपको एज अ फ्रेंड, एज अ कलीग बता रहा हूँ। और सारे प्रोफेशनल मीटिंग्स और प्रोग्राम मैं स्टॉप करता हूँ प्रेजेंटिंग। तो सारे प्रोफेशनल मीटिंग्स और प्रोग्राम इसीलिए जूम से होते हैं क्योंकि इसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन के साथ कंप्लीट कंट्रोल है होस्ट के लिए। और कुछ चीजें तो
टीचर्स आप लोग भी जानते होंगे, वेबिनार का भी ऑप्शन है। अगर कोई बड़ा इवेंट आप करवा रहे हैं तो उसमें आप स्पीकर और पार्टिसिपेंट सेग्रीगेशन भी कर सकते हैं। तो अगर कोई क्वेरी है जूम से या गूगल मीट से, और अगर कोई जूम सब्सक्राइब या लाइसेंस वर्जन लेने में इंटरेस्टेड हो, तो ये बहुत ही चीप है। आपको 1100 या 1200 रुपीज पर मंथ में ही आपको पूरे मंथ का आपको एक्सेस मिल जाएगा। अदरवाइज नॉर्मली भी 40 मिनट्स तक आप क्लासेस ले सकते हैं जूम से। अदरवाइज आप अगर लाइसेंस वर्जन ले लीजिएगा तो थोड़े से एडिशनल फीचर्स हैं, बट मोस्टली फीचर्स बेसिक वर्जन जो मैंने शो किया उसमें भी है। और बस एक लिमिटेशन है मेजर कि आपका टाइम लिमिट है क्लासेस का बेसिक वर्जन में 40। अदरवाइज सिक्योरिटी एंड कंट्रोल फीचर्स सारे बेसिक वर्जन में भी अवेलेबल है। तो नॉर्मली हमारी क्लास 40-45 मिनट्स की ही हो पाती है, तो आप उसको सीरियसली कंसिडर कर सकते हैं।